Okay, hello everyone. So we are going to discuss the question of level 1 of RICE test. So here we have the first question, like first set of question, which is based on the passage. The passage is based on the digital technology, right? So it's clearly mentioned about the digital technology. So this passage is more about a more a factual passage, right? So you can find out the answer directly from the lines which is mentioned in the passage. So what is the main idea of the passage? If you read the all options, you can clearly see it's talking about digital technology. Okay, so digital technology can enhance education if used properly. Right? So in education, it has clearly mentioned about. So it can enhance student engagement and improve learning outcome. So the correct answer here would be the first one. Okay. Moving to the next question. According to the passage, what is the one benefit of using digital technology in education? So it can help us to understand the complex concept. So you can see the second option. It helps student understand complex concepts. So the correct answer here would be the second one. Okay. Moving to the third one. What concern do some scholars have about the use of digital technology in classroom? So the use of digital technology, some scholars have the objection. So it's clearly mentioned here. Some scholars caution that excessive reliance on technology, okay, might lead to reduced critical thinking. So you can easily answer option 2. That's directly from the line of the passage. Okay. Question number 4. Next question. What is the general consensus about digital technology in education? Okay, so you can find out here from the passage, right? This is like option fourth one. It is viewed as valuable tool when used effectively. Okay, it is a valuable, you can see it is a valuable asset in modern technology, right? Modern education. Okay, if it is used now effectively, it is mentioned in the line. So option 4 will be the correct answer. Okay. Next, question number 5 now. What does the passage suggest about the future research? What it's talking about the future research? So you can see here, if you read here, it's future research is needed to explore the long-term impacts of the technology integration on different student populations. So it's talking about the long-term impact. Okay, so option here, the third option will be the correct answer. So there is no problem, like all the questions is directly from the lines, and even the passage is a very simple one. So there is no problem in the, there is no objection in any of the question here. So you can easily answer the questions. Is that clear for every one of you? Okay. So moving to the next question, question number 6. Choose the correct option for the expression slow and inactive. So something is slow and inactive, it means sluggish. The correct word here which matches this slow and inactive is sluggish. Okay. Depleted means something, like if you are using up the resources or something reduced, so that is depleted. Exhausted means something like tired or something already ended. Okay, all the things is used or it's done, right? Okay, it's finished. Distraught means worried and sad, very worried and sad. So here the correct answer would be the fourth one. Okay, fourth option is the correct answer. Okay. Use the correct verb forms. Okay, 20 kilometers dash not a long distance nowadays. So many of student will be confused here between R and A is. So this we have done in this question is directly from our class. We have discussed in the classroom. So you can see the rule which we had discussed in the classroom. So this was the rule which we had discussed. Okay, plural number have always take plural number, but here if plural noun is after cardinal numbers, okay, or adjective 1 2 3, and if plural noun denotes certain amount, weight, height or period, then singular verb will be used. Even we have this example, 10 miles is a long distance to cover on foot. So based on this question, 20 kilometers is okay, not a long distance nowadays. So here the correct verb will be used second option, right? So this is directly from our class which we had discussed the rule. Okay, so the correct answer here will be is the second option. Okay. Moving to the next question, question number 8.
Which of the following is inappropriate meaning of the idiom breaking the bank? So the idiom, the meaning of the this idiom is being very expensive. Okay, breaking the bank. The correct answer is being very expensive. Okay. I received the message dash 7 o'clock dash the morning. This is also directly from our class which we had discussed in live class. Okay, so this was the rule we had discussed when we talk about uh, exact time. Okay, so we use at. Okay, and when we talk about the day, the timings in the daytime, like in the evening, morning. Okay, this we have discussed. And if we are talking about time, then it will be at 7 o'clock and in the evening. So can you see here the question is directly from here only. I received the message at 7 o'clock in the morning, right? So the correct answer here would be the third one. Okay, so this would be the correct answer. So this was also from our the class which we have discussed the rules. Okay, next question. Fill in the blanks with correct option. My fingers are aching because dash since 8 a.m. So when we were talking about tense, this we have discussed in our classroom. Whenever there is since, we are using since. It means we have to write about the continuous tenses, perfect continuous tenses. So here perfect continuous is only option 4. So it will be have been writing. So my fingers are aching because I have been writing since 8 a.m. Okay. So if the someone has attended the class, they can clearly answer these grammatical questions. Okay. Now again we have a passage. Okay. So you have to read the passage and then answer the question. So this is all. This passage is about the like when we talk about the rules, property, or like how the vehicles. Okay, so this is talking about the driving of vehicles and how the person should behave properly. Okay, so we have the question here. The one coming from the right at crossroad always has to. Okay, so if you read the question, you can find out the answer easily. So the correct answer here will be the second one, come before the others. Okay, next one, question number 12 now. Which of the following documents is not mentioned for keeping in a vehicle? Which document is not required actually to keep in the vehicle? So the here PAN card, that is not necessary. Okay. So in the passage they have mentioned about the list of documents which has to be kept. Okay. So PAN card is not required. So the correct answer is with the third one. Next question number 13. When we make a mistake while driving, we should, what we should do? We should correct him, okay, if required. Okay, if we make a mistake while driving, we should correct him, right? We have to do the corrections. Okay. Next question. What is the reason for illegal parking of cars on roadside mentioned in the passage? So according to the passage, what is the reason? Okay. So here you can see lack of enforcement of rules. So that's the reason. Okay, that's the reason. No, because that's why illegal parking is being done. Okay. So here the correct answer would be the second one. Now here, the 15th question. While driving a vehicle, a learner has to display which of the following sign? Also, so most of us is aware. So we the learners who is now learning to drive, they have to put a sticker, okay, and which is showing L. L denotes learner. Okay, so it's clearly mentioned about this. Okay, so here they have mentioned directly in the passage. The board L should be permanently displayed. Okay, if driving a vehicle is still is a learner. Okay, and here also you can see driving license, insurance certificate, pollution free certificate has to be produced. These are the list of documents when we are talking about. Yeah, you can see the 12th question. They have mentioned about the this ownership of the vehicle, driving license, insurance certificate, pollution, but they do not require to be do not require to carry PAN card. Okay. So this ends the passage. So done with the question number 15 now. Coming to question number 16. Choose the correct form of verb to complete the sentence. If the funding dash approved, the project can begin next summer. So the sentence is clearly from the tense. Okay, it's a simple tense. Okay, and it is written in passive way.
So it has to be written, if the funding is approved, the project can begin next summer. Okay. Next, he was known for his resilience in the face of academic challenges. Okay, so the word resilience means persistence. Someone is persistent, who is trying continuously. So here the correct answer would be the third one. Here for question number 16, the correct answer would be the fourth one. Okay. Now, moving to the question number 18, find out the correct sentence. They have given you 4 sentences and you have to find out which is the correct one. So again it's written in passive form. So the theory which had proposed by Foucault has been widely accepted. Okay, the theory which were proposed. So this is were. Anyway, it's talking about theory, so it will be singular in sense. So this sentence would not be correct. Okay, we can directly remove this one. Okay, the fourth one, the theory that are, again it's plural, so that also cannot be accepted. Now we are left with option 1 and 3. The theory which had, near their theory that was. So if something is done in the past, we should directly mention about the verb we should use is was. So the theory that was proposed by Foucault has been widely accepted. So the correct answer here would be the third one. Okay. So this is also, you can see from the, we had discussed about the voice chapter in the class. So you can see here, if object with was were according to the number of, okay, whether it's a singular or plural. So this has been discussed also in the class. So the correct answer will be the third one. Next, moving to the question number 19. Which of the following is opposite in the meaning to the word cunning? So we have to find out the opposite of it is. Okay, so clever is same, trick is also same, willy is also having the same meaning. Knave, someone who is not mature or who is not too much of expert. So knave will be the correct answer. Okay. Moving to the last question. So they conducted interviews with the participant from across dash middle east. Choose the correct option. So this chapter is, this question is from articles. Okay. So this also we have discussed in the class. So the is used before the direction or in the place name of the place where the direction is involved. Okay. So here we will be using the. Okay. So the correct answer would be participants from across the Middle East. Okay, so here the correct answer would be the third one. As we have already discussed, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वाज इजी, राइट? सब लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर बहुत इजी था, यस और नो? पेपर वाज इजी और नॉट? आप अभी तक अपना स्कोर तो चेक कर चुके होंगे आप लोग, यस और नो? तो कितना आपका स्कोर बन रहा है बताओ, कितना स्कोर बन रहा है आप लोग का? कितने जन आप में से 40 प्लस स्कोर कर रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड में? टेल मी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 40 प्लस आप लोग स्कोर कर रहे हो, राइट? कितने जन 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं बताओ, 50 प्लस कितने जन स्कोर कर रहे हैं? ओके, ग्रेट। सो हम सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल पेपर में आप लोग का स्कोर आप लोग चेक कर चुके होंगे, मतलब मैच कर चुके होंगे। ओवरऑल पेपर में कितना आ रहा है आप लोगों का? कितने लोगों का 140 प्लस आ रहा है? देखो सब लोगों को ना एक एक गूगल फॉर्म दिया गया था, ठीक है? उसको फिलअप कर लेना, यस और नो? आप लोगों ने फिलअप किया है जितने भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, यस और नो? सब लोगों ने Yes, फिलअप sir. किया कि नहीं? हाँ, तो एंड दोज हु आर वाचिंग द वीडियो इन यूट्यूब, मैं उनको भी ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी फिलअप कर देना, ठीक है? ताकि एक आइडिया हो जाए। मैं अभी एक फॉर्म भेज रहा हूँ, कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए हम लोग को आइडिया होगा, ठीक है? सब लोग का मार्क्स जब आप लोग अपलोड करोगे ना, हम लोग को आइडिया होगा कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए। देखो मैंने एक फॉर्म भेजा है अभी यूट्यूब के लाइव चैट में भेजा है, और मैं उसको पिन्ड कमेंट में भी भेज दूंगा, ठीक है? तो ताकि आप लोगों को इजी हो। उसमें देखो मैं एक चीज पहले क्लियर करता हूँ कि RICEE एग्जाम में क्या होता है कि मल्टीपल जो है कट ऑफ अलग अलग रहते हैं, सारे स्टेट के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। उस चीज की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को कट ऑफ ऐसे मतलब बताना, एक एक जैसे एनसीईटी के एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ रहता है,
लेकिन आरआई के एग्जाम में क्या होता है कि आपका स्टेट वाइज भी कट ऑफ रहता है। इस चीज की वजह से आप लोगों को वो सब डिटेल्स भरना पड़ेगा। प्लस एक और चीज आ रही है CEE के एग्जाम में, क्या होता है कि आपका 60-40 रहता है। आपका 60-40 का जो रेशियो के हिसाब से आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होता है, एंड उसके वजह से अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर? इसलिए मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग जो है अपना वहां पे जो डिटेल्स दिया गया है उसको फिलअप कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, बहुत आसान पेपर आया था, ये सुन लो, ये सुन लो। क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी, ये सुन लो, बताओ, इजी था ना सब लोग? यस। देखो यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं वो भी बताओ, एंड जो हमारे गूगल मीट में क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग बताओ। बहुत इजी था। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सब लोग बताओ, इसका करेक्ट आंसर दिए हो कि नहीं दिए हो? टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सेट में अलग अलग हो सकता, मतलब आपका जो पेपर है उसमें अलग अलग हो सकता है, बाकी ये मैच कर लेना आप लोग। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यस और नो बताओ। क्वेश्चन इज वेरी इजी, यस और नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन आसान है, सब लोग सर किए होंगे डेफिनेटली। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? व्हाट? सर डेमोन्स्ट्रेशन ऑप्शन क्यों नहीं होगा? हाँ देखो, ये कितनी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं क्लास में भी ये चीज आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होगा। कौन इसका आंसर बताएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? बताओ, हु कैन टेल व्हाई डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट द आंसर? बताओ। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है ना, एक कीवर्ड बताया था एपी, याद है आप लोगों को? ये सुन लो, एपी मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैंने हमेशा आपको ये कीवर्ड बहुत बार बताया, अगर आपने क्लास किया होगा तो लगभग हर एक क्लास में मैं आपको ये चीज बताता था कि एक कीवर्ड से हमेशा क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आप बताओ, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या? एक्टिव पार्टिसिपेशन रोल प्ले मेथड में क्या होता है? यहाँ पे बोल रहा है बेस्ट मेथड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? मोर स्टूडेंट। ठीक है, मैंने बहुत क्लियरली ये चीज बहुत क्लियरली बताया था। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन था, वहां पे लेक्चर मेथड था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट तो करते हैं बट एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा सकते हैं लेक्चर मेथड में, लेकिन जब एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्कशन मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? ये क्वेश्चन हमारे बुक में भी है और ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी है। कितनी बार ये क्वेश्चन दिया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेडली, इंटेंशनली क्वेश्चन को रिपीटेडली लगभग हर एक टेस्ट में, या फिर 40 जो फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए गए थे उसमें से लगभग 20 टेस्ट में ये मिला होगा। ये सुनो, बताओ मिला था कि नहीं सर? तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल हर एक चीज के बारे में बताया। डेमोन्स्ट्रेशन तब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के टीचर सेंटर मेथड होता है, ये तब करते हैं जब हम लोग को बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाना होता है, स्किल सिखाना होता है, तब हम करते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में एक साथ बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर सेंटर टीचर जो जितने लोग को दिखा सकते हैं उतने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दैट्स जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे डिस्कशन इज द बेस्ट मेथड फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। डेफिनेटली किसी ने गलत नहीं किया होगा। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हो तो आपने शायद अच्छे से क्लास नहीं किया होगा, या फिर मटेरियल भी नहीं पढ़ा होगा, या फिर टेस्ट सीरीज में अच्छे से अटेंड नहीं किया होगा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है गलत नहीं होना चाहिए था। When a student visits the house of a teacher to share his or her problem, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सुनो, बताओ डायरेक्ट है कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ऑप्शन देखो, कॉन्टैक्ट पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉन्टैक्ट हिम और हर इन द स्कूल। ठीक है, और सजेस्ट हिम और हर टू मीट द प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रोवाइड रीजनेबल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी था, क्लास में भी डिस्कशन किया था, और ये हमारा बुक में भी है, स्टडी मटेरियल में है। ये सुन लो, जितने Yes, लोग sir. बुक भी नहीं लिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लिए तो पहले 10 टेस्ट में भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दैट इज प्रोवाइड रीजनेबल हेल्प टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम। ये सुन लो, डिस्कस किए थे कि नहीं? मैंने आपको बताया था Yes, sir. टीचर शुड एस्टैब्लिश ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट एंड दैट मस्ट बी अप टू ए सर्टेन लिमिट। लेकिन जब कोई बच्चा आपको हेल्प मांगने के लिए आता है तो यू मस्ट प्रोवाइड हेल्प, रीजनेबल हेल्प, जितना किया जा सकता है।
जितना हेल्प आप कर सकते हो उतना हेल्प आपको करना चाहिए, हम क्लियरली डिस्कशन किए थे, ठीक है। बहुत सिंपल और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, ओके। आप अगर आपसे हेल्प नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन करोगे, लेकिन जब बच्चा आपके पास आता है तो आप डेफिनेटली उसको हेल्प प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, when you entered a classroom and started teaching, you found that most of the students are sitting casually, not looking at you and talking to each other. What should you do in this situation? ये क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज में है, बट थोड़ा जो भी हमने लिखा था थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में लिखा है। हमारे जो टेस्ट सीरीज में जो था उसको थोड़ा इनडायरेक्ट, बट ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। yes or no, we have discussed or not? yes or no? बताओ, डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? कोई यस कंफ्यूजन है सर, इसमें? हुआ था। यस। तो देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टॉप द लेसन एंड आस्क द क्वेश्चन टू पे अटेंशन टुवर्ड्स यू, कीप टीचिंग विद द होप दैट दे विल लिसन लेटर, आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट एंड गिव एन एक्टिविटी टू गेट देयर अटेंशन एंड टेल देम that you won't continue to teach until they behave properly। मैंने आपको एक और कीवर्ड बताया था, याद है आप लोगों को? कीवर्ड था क्या? इंटरेस्ट। ये सुनो, ये कीवर्ड याद है आप लोगों को? यस सर, इंटरेस्ट यस कीवर्ड। सर, इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई, तो कीवर्ड में बताया था, एक और कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, लर्निंग बाय डूइंग। ये सुनो, लर्निंग बाय डूइंग, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। बच्चे जब एक्सपीरियंस, इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं एनईपी के टर्म के हिसाब से। ये क्वेश्चन एनईपी के हिसाब से है, बट एनईपी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसका आंसर हो जाएगा आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड सो दैट उनका एंगेज करना है उनको। अगर आप एंगेज कर पाते हो तो बच्चे आपके बात को सुनेंगे, ठीक है। तो आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड गिव एन एक्टिविटी, उससे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होगा या लर्निंग बाय डूइंग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी ने गलत नहीं किया होगा। ये सुन लो, गलत किए हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ ए सिंसियर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट कम्स लेट टू योर क्लास? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हम हमारे टेस्ट सीरीज में या हमारे क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे। ये सुन लो, बताओ है कि नहीं? यस ऑलमोस्ट सारे Yes, sir. क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यू विल ट्राई टू नो द रीजन ऑफ कमिंग लेट। मैंने बहुत बार बताया था, कुछ भी कभी भी बच्चा लेट होता है क्लास में या होमवर्क नहीं करता है कुछ भी, तो इन दैट केस हमेशा हमको रीजन जानना चाहिए। क्या रीजन है उसके पीछे, वो जानना पड़ता है। You will tell him or her the importance of time. You will ask him or wait for the next class. You will report matter to school head. ये जो है ना, दो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेटेड है। टाइम का इंपॉर्टेंस तो बताओगे, पहले पता तो करो कि क्यों क्यों लेट आता है। ये सुन लो, क्लियर और नॉट, बताओ। यस सर, यस। हाँ, ये चीज भी हम डिस्कस किए थे कि आपको बच्चे का, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एक एड चलता था पहले बचपन में, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वहां पे बच्चा डेली लेट आता था, टीचर जो उसको छड़ी से मारते थे, ठीक है। फिर जो है डेली उसको छड़ी से मारते थे। एक दिन क्या हुआ, टीचर ने देखा कि वो किसी अपाहिज को, व्हील चेयर में बैठा हुआ किसी आदमी को एक जगह तक पहुंचाता है, फिर दौड़ दौड़ के स्कूल आता है। उसके बाद टीचर क्या करते हैं, उसको छड़ी देते हैं, बोलते हैं मुझे मारो। ये एग्जाम्पल एक एड जो है टीवी में चलता था, ठीक है। तो आपको रीजन जानना चाहिए, विदाउट नोइंग द रीजन आप कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चा लेट क्यों आता है, पहले उसका रीजन आपको जानना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, ओके। हमारे डिजिटल लर्निंग के टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग द मोस्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं था, बट ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए थे, तो एक तरह से ये भी हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सुनो, डिस्कस किए थे कि नहीं, बताओ। यस सर, डिस्कस किए थे ना। आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। मैंने अभी एक कीवर्ड आपको क्या बताया था, ये कीवर्ड देखो, मैंने ये पढ़ाते टाइम कितनी बार बताया था कि कुछ कीवर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने इनिशियल क्लासेस भी अटेंड किया होगा तो ये क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कीवर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर, मोटिवेशन अगर बच्चों के अंदर है, मैंने आपको बताया था पूरा, मैंने ऐसा बताया था, मोटिवेशन है तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे उस चीज में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होंगे। मैंने पूरा जो है ऐसा सीक्वेंस में आपको बताया था, जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस, उतना ज्यादा सक्सेस, ये मैंने आपको बताया था। तो आंसर मोटिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, which is the most important challenge facing a school teacher? स्कूल टीचर क्या चैलेंज फेस करते हैं, बताओ। स्कूल टीचर क्या चैलेंज फेस करते हैं? टू प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टू प्रिपेयर लेसन प्लान एंड लेसन नोट,
टू प्रिपेयर एंड यूज असेसमेंट आइटम्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सुन लो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं? ये सुन लो, दिस Yes, क्वेश्चन इज sir. ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था स्कूल में 40 बच्चे होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 40 बच्चे ऑन एन एवरेज होते हैं। तो जितने बच्चे होते हैं सबका जो है आईक्यू लेवल, सबका इंटरेस्ट, सबका अंडरस्टैंडिंग, सबका सेम नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए हम लोगों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शनल टेक्निक जो है, मतलब हर एक सिचुएशन में अलग अलग वे में पढ़ाना इज नॉट एन इजी टास्क। तो लर्निंग को एंजॉयबल बनाना आपको सब पता है, लेकिन बच्चा आपका क्लास को उतना इंटरेस्टिंगली नहीं सुनेंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो। अगेन कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ बताओ? सेम कीवर्ड क्या है? इंटरेस्ट। ये सुन लो, देखो मैंने जो आपको कीवर्ड्स बताए थे, खाली वो कीवर्ड से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे? क्लियर है? ये सुन लो, तो आंसर हो जाएगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर क्लास सम स्टूडेंट्स ग्रास्प कांसेप्ट क्विकली व्हाइल अदर्स स्ट्रगल, हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन? ये भी क्वेश्चन एक पीवाईक्यू में था, अलग तरीके से था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आप बोल सकते हो, बट हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है? ऑप्शन है कंटिन्यू एट द पेस ऑफ फास्टर लर्नर, कंटिन्यू एट द पेस ऑफ फास्टर लर्नर, ठीक है? कुछ बच्चे सम स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ना है, सम स्टूडेंट्स ग्रास्प कॉन्सेप्ट क्विकली व्हाइल अदर स्ट्रगल। तो सारे बच्चे अगर क्विकली पढ़ते होते तो आप इसको कर सकते थे, पर सारे बच्चे क्विकली नहीं पढ़ते तो इसको आप नहीं कर सकते। एडॉप्ट टीम टीचिंग इन्वॉल्व स्पेशल एजुकेटर, ठीक है? इसका भी जरूरत नहीं है, टीम टीचिंग कर तो सकते हो बट स्पेशल एजुकेटर का उतना ही जरूरत नहीं, ठीक है? ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑफर एडिशनल सपोर्ट एंड एक्टिविटी टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल सही है। कीप योर पेस सुइटेबल फॉर द एवरेज लेवल लर्नर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एवरेज में अगर अपना पेस को रखोगे तो जो गिफ्टेड लर्नर या जो फास्ट जो बच्चे लर्न करते हैं उनके लिए भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये सुनो, उनका लॉस होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आप ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कौन सा कीवर्ड आपको याद आ रहा है बताओ? इसके लिए भी मैंने आपको कीवर्ड बताया था या की कंसेप्ट बताया था। एनीवन कैन से? किसी को याद है कि कौन सा कीवर्ड है इसमें हम डिस्कस किए थे? यस, बताओ। इसका जो कीवर्ड है रेमेडियल टीचिंग। क्या है रेमेडियल टीचिंग? याद है ना? डिस्कस किए थे कि रेमेडियल क्लासेस? बताओ याद आ रहा कि नहीं? रेमेडियल क्लासेस बात किए थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि नहीं? रेमेडियल क्लासेस पहले डायग्नोसिस करना होता है, फिर रेमेडियल हेल्प देना होता है। तो जो बच्चे स्लो लर्नर है उनके लिए एडिशनल सपोर्ट का मतलब है रेमेडियल क्लासेस कर सकते हैं। ये सुन लो, क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आगे चलते हैं। द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज हर कौन है? मतलब फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज हर और हिज क्या? बहुत सिंपल, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो मैं एक इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन था हमारे सामने। ये सुन लो, हमारे सामने एक इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन, मतलब इस ये भी हम डिस्कस किए थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। ये कौन सा, इसका जो कंसेप्ट है सोशलाइजेशन वाला है, ठीक है? मैंने सोशलाइजेशन के बारे में आपको बताया था। सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है घर से, और घर से भी जब स्टार्ट होता है वो मम्मी से स्टार्ट होता है। मम्मा वो जो बच्चा होता है सबसे पहले मम्मा पापा बोलता है, तो मम्मी उसके सामने ज्यादा टाइम रहते हैं तो मम्मी उसको सिखाते हैं। मैंने एक और कंसेप्ट भी इसके रिलेटेड बताया था कि जब बच्चा नर्सरी में जाता है तो वहां पे जो पढ़ाते हैं टीचर, उनको मदर टीचर कहा जाता है। मदर टीचर, ठीक है? मतलब बच्चे का एक तो मदर तो उनका पहला टीचर है, और जब वो स्कूल में, मतलब छोटे बच्चे जब पहले फिर बाल वाटिका में जाते हैं तो उनको मदर टीचर बोला जाता है। ये भी हम डिस्कस किए थे। तो बहुत सिंपल है, मदर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मम्मी सबसे पहले बच्चों को गाइड करते हैं या जो है बताते हैं डिफरेंट चीजें। पापा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फादर, देखो कुछ बच्चे फादर शायद किए होंगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में पापा जो है जॉब करते हैं। हमारा जो इंडिया है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मदर घर पे रहते हैं, फादर जॉब करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए फादर मदर जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? देखो, इफ ए स्टूडेंट इन योर क्लास फेल्स टू आंसर योर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से, ठीक है? if a student is in your class fails to answer your question, then आप क्या करोगे? Ask him or her to study more,
provide clue for the correct answer, ask another student to answer and ask him or her to sit down. ठीक है, एक चैप्टर हमारा था कौन सा, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, याद है ना, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अलोंग विद दैट आप क्लासरूम मैनेजमेंट वाला चैप्टर में या ग्रुप मैनेजमेंट में भी इसको पढ़े होंगे। मैं आपको बताया था कि प्रोवाइड क्लूज फॉर करेक्ट आंसर, बच्चों को थोड़ा क्लू दो, अगर क्लू देने के बाद भी नहीं हो पाता तो आप दूसरे बच्चों को पूछ सकते हो, बट सबसे पहले जब बच्चा आंसर देने के लिए फेल होता है, बोल नहीं पाता है, तो एट दैट टाइम यू गिव क्लू टू द स्टूडेंट सो दैट वो थोड़ा सा, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है तो वो बता सके। यस और नो, क्लियर? क्लियर सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is the basic and the most important quality of a good teacher? ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमारा वही इंटरपर्सनल के चैप्टर से है, ठीक है। तो मैंने आपको कितनी बार ये चीज बताया था, याद करो, मैं बहुत बार, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी हमने रिपीटेडली डिस्कशन किया है, ये सुन लो, याद आ रहा है? नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंटरपर्सनल में मैंने आपको बताया था, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और क्वालिटी फॉर ए गुड टीचर। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल, बाकी सब उसके बाद आता है, बट नॉलेज इज द फर्स्ट थिंग। ये सुन लो, क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a characteristics of the teaching profession? कौन सा टीचिंग प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे वो, बट हमने इनडायरेक्ट, एक अलग क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट तरीके से ये भी आप कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने डिस्कशन किया था कि जो कोचिंग वगैरह जो होता है उसमें कैसे, एक ऑप्शन था कोचिंग क्यों टीचर पढ़ाते, तो उसमें आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। प्री सर्विस टीचिंग तो आपका डेफिनेटली टीचिंग प्रोफेशन का पार्ट है, इन सर्विस ट्रेनिंग टीचिंग प्रोफेशन का पार्ट है। स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, विदाउट स्पेशलाइज नॉलेज आप जो है टीचर नहीं बन सकते, टीचर बनने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, तीनों आपको चाहिए। प्राइवेट कोचिंग कैन बी एलिमिनेटेड, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट? पासिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट्स, encouraging students to come to school, attracting parents to admit their children in school and making students learn with joy। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी पूछा था उसी का रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में किया था और हमारे टेस्ट सीरीज में भी है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल क्लासेस से। जॉय मतलब क्या? इंटरेस्ट। अगेन देखो, एक कीवर्ड से कितना क्वेश्चन पूछा गया। मेरा पहला भी क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा, जो डेमो क्लास भी यूट्यूब में मैंने अपलोड किया था उसमें भी कितने सारे आया है। तो ये तुम्हारा क्या है, मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न विद जॉय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing of teaching process. Making the teaching process enjoyable is a challenge, as well as making teaching process, making the students learn with joy is the one of the objective of teaching process, ठीक है। बाकी passing information, only passing information is not our objective. Encouraging to come to school is not, encouraging to study is an objective, but encouraging to come to school is not direct objective, or attracting parent is not a direct objective. Next question, if a lesson taught by a teacher is not properly understood by student, then the teacher should do what? टीचर को क्या करना चाहिए? ओके, टीचर को क्या करना चाहिए बताओ? ओके, टीचर को क्या करना चाहिए? Ask students to motivate themselves to learn, skip the lesson and proceed to the next lesson, change his or her method of teaching the lesson, advise students to go for private coaching। ठीक है, आप देखो प्राइवेट कोचिंग तो हम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि एज ए टीचर सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, ठीक है। तो आस्क स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देमसेल्फ टू लर्न। देखो बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उनको खुद से पढ़ने के लिए बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन मेथड से आपका हो जाता है चेंज हिज और हर टीचिंग मेथड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने डिस्कशन किया था ये क्वेश्चन, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी सिंपल, एलिमिनेशन। देखो टीचिंग पे मैंने आपको हमेशा बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, एंड दैट हेल्प। एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प किया कि नहीं बताओ? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main objective of teaching? इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
मैं जब क्वेश्चन पेपर देखा या आप एग्जाम के बाद जब मुझे रिव्यू दिए तो आई वाज वेरी हैप्पी कि टीचिंग एप्टीट्यूड इतना आसान हो गया, इतना मतलब आता है। मैंने आपको बोला भी था एग्जाम से पहले कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए टेंशन मत लो, जितना पढ़ चुके हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट से भी ज्यादा है। मैंने आपको बहुत सारा चीज पढ़ाया था विच वाज नॉट विच इज फॉर हायर, मतलब हायर लेवल के लिए आपको काम करेगा। मतलब जब आप आरआई में एंटर करोगे, आप सीटेट एग्जाम दोगे या नेट एग्जाम दोगे, तब के लिए भी जो चीज काम आएगा उतना एडवांस लेवल का हम स्टडी किए थे, इसलिए वो ये सब क्वेश्चन आपने चुटकियों में सॉल्व किया होगा। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट टू डेवलप थिंकिंग स्किल ज्यादा अप्रोप्रिएट है, टू प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज टू स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव है ये भी, टू गिव स्टूडेंट्स टू चूज राइट करियर, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव तो अगर देखा जाए तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। वैसे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करना, तो चारों ऑब्जेक्टिव है। बट मेन कौन सा, इन चारों में से देखो, जिस केस में देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल इन टीचिंग एप्टीट्यूड, काफी केसेस में आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट लगते हैं, इन दैट केस आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसको हमको टिक करना होता है। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, टू डेवलप थिंकिंग स्किल, रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे कैन बिकम ए गुड सिटीजन। हमारा मैंने आप इसमें जो कीवर्ड मैंने आपको बताया था सिटीजन, गुड सिटीजन, बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। गुड सिटीजन ये उसका कीवर्ड या की फ्रेज है या की टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज टू डू व्हाट। यहाँ पे हमने प्री स्कूल एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब क्या है प्री स्कूल एजुकेशन का कीवर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज प्री स्कूल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी। कुछ देखो एनईपी से आप लोग को लगता, आप लोग बोल रहे थे कि एनईपी इन सब से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, बट डायरेक्ट नहीं आया बट इनडायरेक्टली आया। ये क्वेश्चन एनईपी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका। वैसे पहले तो प्री स्कूल बोला जाता था, तो आप एनईपी का नहीं भी बोल सकते, बट इनडायरेक्टली एनईपी जो पढ़ा होगा थोड़ा पता होगा यहाँ पे। तो प्री स्कूल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है स्कूल एजुकेशन का, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर एजुकेशन। आगे की जो नॉर्मल स्कूल एजुकेशन के लिए हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, सही है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्किंग मदर, ये गलत है। मेक द चिल्ड्रन लर्न टू बिहेव प्रॉपरली, ये भी ऑब्जेक्टिव पर उतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्कूलिंग, ये भी नहीं है। तो वेरी सिंपल एलिमिनेशन सॉल्व हो गया, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फर्दर एजुकेशन। इसमें इस क्वेश्चन में भी किसी ने गलत नहीं किया होगा, अभी तक जितना क्वेश्चन है उसमें किसी ने गलत नहीं किया होगा। एक क्वेश्चन में किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया था पहला क्वेश्चन, बाकी मुझे नहीं लगता किसी ने किसी भी क्वेश्चन में गलत किया होगा, सब आपने करेक्ट किया होगा। ये सुन लो, नेक्स्ट है, इफ ए स्टूडेंट इज टू शाय टू पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये देखो नाम जो फ्रेज पढ़ के मैं बोल देता हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जब बच्चा शाय होता है टू पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हर और हिम। ये गलत है, ये सुन लो, गलत है कि नहीं? यस सर। या तो ये तो गलत है। उसके बाद आस्क क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड बाय हिम और हर, ये कर सकते हो, ताकि जो अगर वो जब शाय स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो जो जानता है वो ही पूछोगे, तो वो जब आंसर दे पाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये ऑप्शन सही है। आस्क क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय, इसमें तो बच्चा और ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा, अपने आप को और इन्फीरियर फील करेगा। तो तारे जमीन पर मूवी में होता था, ठीक है, तारे जमीन पर मूवी इसका जो है एक एग्जाम्पल, मैंने पढ़ाते टाइम इसका भी एग्जाम्पल दिया था इस मूवी का। तो बच्चा को अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे, ऑलरेडी वो शाय है और उसको डिफिकल्ट सवाल पूछोगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और रिमेन इनडिफरेंट मतलब उसको बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये तो नहीं कर सकते। तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो गया, आंसर विल बी 2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, which of the following indicates that teaching is of good quality? Which of the following indicates that teaching is of good quality? Maintain discipline in the classroom, standard of question raised by the student, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कशन किया था। आप जो पढ़ा रहे हो उसका इंडिकेटर क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखते ही आपको याद आ गया होगा, वैसे आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेज बाय द स्टूडेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी देख लो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, टीचर का नहीं है, स्टूडेंट्स का होता है।
तो ये तुम्हारा गलत है। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे क्लास और टेस्ट सीरीज एंड बुक से भी, अगर आपने अटेंड किया हो तो कोई भी आपने टेस्ट सीरीज भी लिया तो भी इसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई शुड ए टीचर एट फाउंडेशनल स्टेज, देखो एनईपी का क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे नहीं आया, फाउंडेशनल स्टेज का मतलब एनईपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हैव चाइल्ड साइकोलॉजी, वैसे ये हम बेसिक्स में भी डिस्कस किए थे, मैंने आपको 2 पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है। आगे भी मैं जब भी हमारा जो न्यू बैच होगा जो 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 अगस्त से जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से, तब भी मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट करके, एक होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका कंसेप्ट एक पार्ट, और दूसरा होता है आपका जो करंट या डायनेमिक पार्ट या फिर तुम्हारा स्टैटिक पार्ट इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट या स्टैटिक पार्ट एक हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट या करंट हो जाएगा एक, और स्टैटिक हो जाएगा। तो हम उस तरह से आगे भी डिस्कशन करेंगे, जैसे इस साल की आगे भी वैसे ही करेंगे। तो टू हेल्प द टीचर मेकिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन, फाउंडेशन स्टेज में बच्चे का चाइल्ड साइकोलॉजी जानने की क्या जरूरत है, बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए, हाँ ठीक है, हो सकता है। टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, की वर्ड है एक तरह से। चाइल्ड साइकोलॉजी जानने से बच्चे को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये तो वैसे करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन भी देख लो। टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन, टू हेल्प द टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी जानने से हम बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि हम उसको डिसिप्लिन कर सके, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्लासरूम मैनेज कर सके। ये सारा का सारा ऑप्शन 2 के अंदर आ जाता है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया था। कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट इज बैंड इन स्कूल बिकॉज ऑफ व्हाट, ये भी टेस्ट सीरीज के अंदर था। कॉर्पोरल पनिशमेंट, स्टूडेंट्स बिकम अनहैप्पी विद टीचर, नो। स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक ठाक है, ऑप्शन है। पेरेंट्स में लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट टीचर, ये भी ठीक है, बट उसका बैन होने का रीजन ये नहीं है। ठीक है, बैन होने का रीजन नहीं है। इट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू स्टूडेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन आपका ये है कि ड्रॉप आउट कम करना था। ठीक है, जब आरटी आया, ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन हुआ है ना, ये जब आरटी एक्ट आया ना उसके आसपास ही बैन हुआ था। ठीक है, बैन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट तब हुआ था जब आरटी एक्ट आया था। आरटी एक्ट 2009 में जब आया, उसमें बोला गया कि हम सारे बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। ठीक है, सारे बच्चों को हम लोग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे मतलब सबको पढ़ाएंगे, तो ड्रॉप आउट भी तो कम करना है। और ड्रॉप आउट कम करने के लिए एक और चीज हो सकता था, वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल बैन कर देना। कुछ बच्चे क्या होता था कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे बिकॉज टीचर से डर के, कुछ बच्चे टीचर से डर के स्कूल नहीं आते थे, उस चीज को रोकने के लिए ये चीज किया गया है। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर देना। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे, वैसे डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग ऑफ चिल्ड्रेन शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बिकॉज। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस किया था। मदर टंग को क्यों हम रखना चाहिए? चिल्ड्रन विल लव देयर मदर मोर, नहीं, मदर टंग का मतलब मदर को प्यार करना नहीं होता है। मदर विल लव देयर चिल्ड्रन मोर, ये भी नहीं है। इट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेनी कंट्री, ऐसा भी नहीं है कि मेनी कंट्री में मदर टंग इंस्ट्रक्शन होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, इट मेक्स लर्नर इजियर एंड एंजॉयबल, यहाँ पे भी मैंने इसको भी डायरेक्टली बताया था कि मदर टंग पढ़ाने से बच्चे के लिए इजियर हो जाता है कंसेप्ट, और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, और बच्चा अपने बात को रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो सिंपल और एलिमिनेशन, बहुत सिंपल से इसको आप एलिमिनेट करके इसको कर सकते थे, आंसर विल बी 4। अभी तक कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है अभी तक? नहीं? नो सर। No, sir. No, sir. नेक्स्ट, which of the following is not a quality of a good teacher, इसमें से कौन सा गुड टीचर का क्वालिटी नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट है सी और ही शुड कीप हर नॉलेज अपडेटेड। एक सेकेंड, हाँ, तो सी और ही शुड लव हर स्टूडेंट, सी और ही शुड कीप हर सेल्फ अलूफ फ्रॉम कम्युनिटी, सी और ही शुड हैव कमांड ओवर द सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पे बोला नॉट ए गुड क्वालिटी, नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर या नॉट ए गुड क्वालिटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। ठीक है,
सी और ही शुड कीप आवर नॉलेज अपडेटेड। मैंने आपको बताया था टीचर का इसमें क्या की कंसेप्ट यूज हुआ है, बताओ? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सुन लो, टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, टीचर जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, तो ये कंसेप्ट हो गया। ही और सी शुड लव स्टूडेंट्स, ये भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का पहला पेज में है, ठीक है। बेसिक्स में हमने पढ़ा था, बेसिक जो हमारा जो बुक में बेसिक इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है। बच्चे बोलते थे सर बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या उसको पढ़ना चाहिए? मैंने बहुत बार बोला बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ो, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन से ही आपको जो है क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये बेसिक्स है, बच्चे को प्यार करना होता है, ठीक है। फ्रेंडली अप टू सटल लिमिट या फादर लाइक रिलेशनशिप, मैंने कितनी बार आपको फादर लाइक रिलेशनशिप बताया। मैंने आपको बोला था पढ़ाते टाइम कि बच्चों के प्रति लव एंड फेथ होना चाहिए, हमारा पहला क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन का पहला क्लास है, मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है ही शुड कीप आवरसेल्फ अलूफ फ्रॉम द कम्युनिटी। मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमको कम्युनिटी के साथ भी जो है रिलेट होना होता है। ये हमारा ये जो पार्ट है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? एटीट्यूड ऑफ ए टीचर्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन स्कूल एंड एजुकेशन जो चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी के साथ भी टीचर का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, मैंने बताया था। तो एलूफ मतलब अपने आप को अलग कर देना कम्युनिटी से, ये गलत है, ये गलत है। और ही शुड हैव कमांड ओवर सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या नहीं है? तो 3 नहीं है, तो सही है 3 जो है नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें हम ऑब्जेक्शन कर सके। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे इन ए क्लास ए टीचर शुड डू व्हाट, जब आप पहला दिन जाते हो पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमने बहुत बार डिस्कशन किया था क्लास में, ठीक है। ऑन द इवेलुएट द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ, इवेलुएट द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, डायरेक्टली जाते ही आप इवेलुएट करने लगो, उनसे क्वेश्चन पूछने लगो उनका नॉलेज कितना है। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, ठीक है। आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक डिसिप्लिन एंड स्टार्ट टीचिंग ए लेसन, मैंने आपको क्या बताया था? जब आप, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी था और इनडायरेक्टली भी था। इनडायरेक्टली हमने पढ़ा था क्या कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करो, ठीक है। इंटरेक्शन करो, कैसे करो? एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों का अपना इंट्रोडक्शन देना, इंट्रो क्लास याद है ना? इंट्रो था कि नहीं आपके टेस्ट सीरीज में? बताओ, रिसेंट जितने आपने टेस्ट सीरीज दिया उसमें ये क्वेश्चन था कि नहीं? ये सुन लो, यस सर, बुक में भी था। बुक में भी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब हमको बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, बच्चों को समझो फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ। बिना समझे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं डेवलप किया जाएगा। पहले बच्चों का नाम जानो, उनको इंट्रोड्यूस, अपना भी इंट्रोडक्शन दो, उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन पूछो, फिर जो है आप उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स एकेडमिकली पुअर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हुए होंगे, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। ये जो हमारे बुक में एक क्वेश्चन था, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे बुक में भी था, टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए थे, बट उसमें ऑप्शन अलग थे, ठीक है। यहाँ उसमें क्वेश्चन था व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट, एंड सेम है, एकेडमिकली पुअर है जो और वीक स्टूडेंट है, दोनों सेम चीज है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो ऑप्शन था वो अलग था, उसमें लेनियंट था, लिबरल था और कुछ ऐसा था, और स्ट्रिक्ट था। उसमें बाकी जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन ऐसा था कि वीक स्टूडेंट्स को आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, लिबरल है, लेनियंट है, उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बट इस केस में क्या है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, फादर लाइक रिलेशनशिप। फादर क्या करते हैं, फादर आपका क्या करते हैं, आपके प्रति फादर का प्यार भी होता है, लव भी होता है, एंड फादर उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ केसेस में जब आप गलती करते हो तो वहां पे आपके फादर स्ट्रिक्ट भी होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड है ना चूज करके फादर चूज करना, बिकॉज फादर लाइक रिलेशनशिप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। फादर का जो रिलेशनशिप है फ्रेंडली बट अप टू ए सर्टेन लिमिट होता है, पूरा फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। इस चीज के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लविंग हो जाएगा, लविंग इज द बेटर ऑप्शन। अगर इसमें हमारा जो बुक में जिस तरह का ऑप्शन था, इंडिफरेंट, लिबरल, उस तरह का जो ऑप्शन था, उसमें स्ट्रिक्ट हमारे पास ही एक ऑप्शन था जिसको हम चूज कर सकते थे। बाकी ऑप्शन ऐसा था जिसमें बच्चा और ज्यादा जो है वीक होगा, बिकॉज हमारा एक उसके साथ एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा था। बट हियर लविंग रिलेशनशिप इज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप और फादर लाइक रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब आप जब बच्चा वीक है तो जहां उसको सपोर्ट करना चाहिए वहां सपोर्ट करो, लेकिन जहां पे बच्चा बदमाशी करता है, बच्चा होमवर्क प्रॉपरली नहीं करता, वहां पे स्ट्रिक्ट भी रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लविंग विल बी द करेक्ट आंसर। बस यही क्वेश्चन था मुझे जहां पे लगता था कि आप लोगों ने कुछ कुछ बच्चों ने गलत किया होगा, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन अलग थे, तो स्ट्रिक्ट टिक करने का चांसेस बहुत ज्यादा था। बट इस क्वेश्चन में लविंग विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट,
इन ए ग्रुप ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स मिसबिहेव विथ यू, if a group of senior students misbehave with you, आपके साथ बच्चे misbehave कर रहे हैं, ठीक है, कुछ senior students misbehave कर रहे हैं, how would you address the situation, आप इस केस में किस तरह से जो है एड्रेस करोगे सिचुएशन को, ठीक है, किस तरह से आप एड्रेस करोगे। यू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट देयर वर्ड्स मिसबिहेवियर, आप उनके पेरेंट्स के साथ बात करोगे मिसबिहेवियर के लिए। सबसे पहला चीज कि आपको जो सिचुएशन है खुद डील करना चाहिए। और मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन भी हम इनडायरेक्टली डिस्कस किए थे, पूरा एग्जैक्ट तो टर्मिनोलॉजी नहीं था बट ऑप्शन पूरा जो है सेम था, ठीक है। तो आप जो है मिसबिहेवियर, हमारे जो टेस्ट सीरीज में एक अलग क्वेश्चन था जिसमें इग्नोर करना हमारे पास एक ऑप्शन था, ठीक है, और बाकी ऑप्शन गलत था, तो वो अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन अलग है। यू विल पैसिफाई दैट इमोशन पोलाइटली, ठीक है, ये सही है। यू विल रिपोर्ट द मैटर टू स्कूल लीड, स्कूल हेड मतलब प्रिंसिपल को रिपोर्ट करो। यू विल नॉट रिएक्ट रिमेन क्वाइट, ठीक है, यू विल नॉट रिएक्ट रिमेन क्वाइट। ये ऑप्शन आप चूज कर सकते थे। वैसे फोर्थ ऑप्शन ठीक होता अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता, इसके जगह पे कुछ और ऑप्शन होता तो इस केस में फोर्थ ऑप्शन आप कर सकते थे। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता है इस जगह पे 2 में कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको दो, स्ट्रिक्ट, या फिर एनीथिंग रिलेटेड कि उनका मार्क्स कम कर दो, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो, उनको पनिश करो, उनको स्कूल से एक्सपेल करो, या उनको जो है कुछ क्लास से बाहर कर दो, कुछ भी ऐसा ऑप्शन होता, ठीक है, इन दैट केस आप फोर्थ को टिक कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपका है एक ऑप्शन जो 2 में है, यहाँ पे बोला यू विल पैसिफाई देयर इमोशन पोलाइटली, आप उनके साथ ज्यादा मतलब ये नहीं करना है, मतलब ज्यादा गाली गलोच या उनके साथ कोई हार्श ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। उनका इमोशंस को जो मिसबिहेव कर रहे हैं, क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, आप अपना उनका रीजन जानो, ठीक है, और उनका इमोशन को अपना पढ़ाई के थ्रू या अपने गाइडेंस के थ्रू पोलाइट ट्रीटमेंट करो। तो क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इस केस में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, सही है ना आप लोग, सर इसमें कोई ऑप्शन डाउट आप 3 लोग? नहीं हो सकता है यस, सर, ऑप्शन 3। ऑप्शन सी तो नहीं करोगे ना आप। सबसे पहला चीज की आप डील करोगे, सबसे पहला चीज आप खुद डील करोगे। मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा शायद, प्रिंसिपल इज द लास्ट रिजॉर्ट, याद है ना, मैं एक टर्म आपको बताया था लास्ट रिजॉर्ट, याद है, ये सुनो। ये सर बताया था। हाँ, प्रिंसिपल इज द लास्ट रिजॉर्ट, आप प्रिंसिपल के पास तब जाओगे जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, जब आपसे सॉल्व नहीं होता है तब आप प्रिंसिपल के पास जाओगे एंड पेरेंट्स को भी बुलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, यू विल स्पेसिफाई देयर इमोशन पोलाइटली। नेक्स्ट जो आपका आंसर है, द की पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, नो वेदर द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर, नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेसन, लेबल द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्स ऑफ द टू द क्वेश्चन, कम्युनिकेट पेरेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वार्ड, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल गलत है कि बच्चों को लेवल करना, क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं कि इनको स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर, लेवल, ये नहीं है, बच्चों को लेवल करना नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। ओके, उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट पेरेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्ड, ये भी जो है इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। नो वेदर द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग और नॉट और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों ऑप्शन में आपको एक चूज करना चाहिए। एंड बेस्ट कीवर्ड क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज द कीवर्ड इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है, ये सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is best suited for emotional development of children, इमोशनल डेवलपमेंट एक चैप्टर था, इमोशनल एडजस्टमेंट, ठीक है, हमारे ये जो एक चैप्टर था इमोशनल एडजस्टमेंट, उसका जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था क्लियरली, हमारे जो क्लासरूम मैनेजमेंट वाला चैप्टर या ग्रुप मैनेजमेंट वाला चैप्टर में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। नॉन इन्वॉल्वमेंट मतलब एक तरह से क्या है, इनएक्टिव पार्टिसिपेशन। कंट्रोल क्लासरूम मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट क्लासरूम होता है, ऑथोरिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डेमोक्रेटिक इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू शुड चूज। ये अगर किसी ने गलत किया है तो आपको और 1 साल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स ए टीचर एट फाउंडेशनल स्टेज, ये अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड था, एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मेक चिल्ड्रन डिसिप्लिन, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू स्कोर हाई, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, सेम क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा तोड़ मरोड़ के या थोड़ा जो है ट्विस्ट करके, बट
बट ऑप्शन भी सेम है, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन। ठीक है, बिल्कुल आसान, लेवल 1 इतना आसान दिया। मैं इतना बिलीव नहीं करता था कि इतना आसान देगा। हमारा लेवल बहुत हाई तक हम पढ़े थे, लेवल 3 तक का प्रिपरेशन किए थे लेवल 1 के केस में, लेकिन उससे भी ज्यादा किए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आ गया। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईटी के थ्रू एग्जाम हो सकता है, बट जैसा भी हो क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे इस साल तो आसान था। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू मेक टीचर integrate technology with development of teaching skill, encouraging each teacher to create WhatsApp group for the class, ensuring that technology part of specific number of lesson each week, creating exemplary technology, integrate lesson plan to each grade level, modeling effective use of technology। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन डायरेक्ट था। ठीक है, ये ऑप्शन आपको याद होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बट हमने ये क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। मॉडलिंग इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इसका आंसर हुआ था, टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का यूज को प्रॉपरली करेंगे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है टीचिंग स्किल में, तो आपको इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी थ्रू आउट द ईयर। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, बट क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू बेस्ट सपोर्ट योर स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 12 to 18? ठीक है, 12 to 18 के केस में आप कैसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे? टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये भी हमारा कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया था कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तब होता है जहां पे बच्चे फ्रीली या फियरलेसली आपसे सवाल पूछ सकें या एक्सप्रेस कर सकें, अलाउइंग देम टू एक्सप्रेस फ्रीली क्लियर करेक्ट आंसर, टीचिंग देम टू रेस्पेक्ट एल्डर, ये नहीं है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन चिल्ड्रन, ये भी नहीं है। क्रिएटिंग गुड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है, बच्चों के लिए फ्री एनवायरनमेंट या फियरलेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको ये चीज बताया था, फ्री एंड फियरलेस, मैंने आपको बताया था ये चीज, आप लोगों को याद होगा, फ्री एंड फियरलेस एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू डू व्हाट? द मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा हमारा जो है पहला चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, जो हमने बेसिक से चैप्टर किया था उसका क्वेश्चन है ये। प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट जॉब, नहीं है। सपोर्ट द पेरेंट्स एट होम, नहीं। ब्रिंग फ्रॉम द सोसाइटी, यस, बट डेवलप द इनर पोटेंशियलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इज करेक्ट आंसर। अगर ये आप करते हो तो ये ऑटोमेटिक, थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेवलप द इनर पोटेंशियलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, इनर पोटेंशियलिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, क्लियर? In this particular video we are going to solve the reasoning section, okay, which contains again 30 questions, as you all know. As far as I have solved, there is no objectionable question, or there is no question that can be डाउट उठाया जा सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, सारे क्वेश्चन सही है। और एक बात और है कि क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट थे, द क्वेश्चन वाज मॉडरेट, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी easy. 4 to 5 questions were actually time taking, so apart from that 22 questions were really, very good, really easy, and all those students who have taken our class या फिर मैंने जिन लोग को पढ़ाया है, बहुत सारे questions हम लोग के पढ़ाए हुए जगह से भी आया था। and again the questions were like रीजनिंग, मैंने हमेशा से बोलता है कि रीजनिंग सेक्शन इज़ गोना बीट एलिमिनेटर, या फिर वो एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से बच्चे या फिर जहाँ से स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, ये चीज़ है। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो पहले क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 80 होता था, बट इन दिस सीबीटी मोड हम लोग को फिर से क्वेश्चन नंबर 1 to 30 देखने को मिलेगा इन द रीजनिंग सेक्शन। सो दिस इज द रीजनिंग सेक्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले ढूंढ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर डिविजिबल बाई 3। ओके, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, n into 4 में लिख सकता हूँ, 4 से डिविजिबल हो, बट उसके पहले एक नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स सी कितने 4 से डिविजिबल वाले नंबर है। ओके, 20 है, ओके 16 है, 40 है, 36 है,
24 है, 20 है, 12 है, 28 है, 32 है, 48 है, 16, 24, 52, 56। नाउ हम लोग को इसके बाद ये देखना है, दिस इज आई एम टेलिंग यू द अप्रोच। इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर के पहले 3 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर नहीं है। ओके, सो हम लोग अगर देखेंगे तो 20 के पहले जो है ये तो डिविजिबल है 3 से, तो ये नहीं हुआ। 34 तो है ही नहीं। 16 जो है 34 डिविजिबल नहीं है, तो 34 16 एक एक करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो ये हो गया। 40 16 अगेन, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, इसके बाद 26 36, यस 26 36 ये भी हो गया। 24 36 ये नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट अगेन 36 इज डिविजिबल बाई। ओके, देन 20 42, यस 42 इज नॉट डिविजिबल, नो 42 इज डिविजिबल, सो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। बट 12 20, यस 20 इज नॉट डिविजिबल, सो 20 एंड 12। ओके, नेक्स्ट 28 12 ये नहीं हो सकता है। 32 28 हो सकता है, ठीक है। ओके, 32 48 हो सकता है, तो ये हो गया। 32 48 हो सकता है बिकॉज 32 इज़ नॉट डिविजिबल, ये हो सकता है। 33 ये नहीं हुआ। 16 33 नहीं हो सकता है। 24 16 यस हो सकता है, ठीक है। फिर चला गया 52 39 39 इज डिविजिबल बाई 3। 56 52 यस अगेन 52 56 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रेखा ड्रोव हर कार नॉर्थवर्ड। ओके, लेट्स सी, रेखा ड्रोव हर कार नॉर्थवर्ड। ओके, देन took a left turn and drove 8 kilometer. So this is 8 kilometer. This is 8 kilometer. I am just taking a bit time ताकि सब लोगों को समझ में आए, बट इतना भी स्लो आपको नहीं करना था, या फिर मतलब काफ़ी फास्ट इससे आप कर सकते थे ताकि ये बन जाए। ओके, एंड अगेन टूक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्रोव 20 किलोमीटर। यहाँ से वो 20 किलोमीटर ड्राइव किया है। ओके, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज 17 किलोमीटर, दैट मीन्स this is the starting point and this is the market, this is the shortest distance. Okay, how far he did रेखा ड्राइव नॉर्थवर्ड इनिशियली? तो आपको एक यहाँ पे ये करना है। ओके, सो दिस इज 17 एंड दिस इज 8, हाउ मच दिस शुड बी, हाउ मच दिस शुड बी? तो अगर मैं करूँ कि 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये कितना देता है हम लोग को? 225, दैट्स मीन्स 15 का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 15 स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर अगर ये 15 हो गया, अगर ये 15 है और टोटल अगर 20 है, टोटल 20 है, तो ये हो जाएगा 5, विच इज़ अगेन दिस इज़ 5। ओके, तो हाउ फार डिड रेखा ड्राइव नॉर्थवर्ड इनिशियली? नॉर्थवर्ड इनिशियल में कितना ड्राइव किया था? 5 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 pairs of word are given below. In 3 of pair, the 2 words have similar relationship. Which one is different? Find the odd pair. यहाँ पे यही चीज़ है कि सन से हम लोग को वर्म्स मिलता है, रेन के वजह से फ्लड होता है, फ्रूट से हम लोग को विटामिन मिलता है, बट ह्यूमिडिटी की वजह से हीट नहीं होती है। यू ऑल नो दैट इज ऑल वाटर पेपर एंड ऑल। हीट की वजह से ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से हीट नहीं होती है। ओके, तो ऑप्शन 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज फाइन। स्पीच, song, recitation is a form of again which can be done by mouth, but dance is not, dance is different, तो ऑप्शन 2 इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इजी, लेट्स सी। B, okay, then I am taking the first letter first. Okay, B C D E F G H I J K L M N O P, then it will be Q. Fine, this is, see this is plus 1, this is plus 2, this is plus 3, this is plus 4, this is plus 5, so this will be Q. ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। नाउ Q T W और Q S U, तो हम लोग सेकेंड वाला चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। लेट्स सी, D E F G, ओके, नाउ G, देन H I J, then K, L M N, L M, then N, then what should be? Okay, now see,
this is plus 1, this is plus 0, this is plus 3, this is plus 2. Now see, this is plus 2 and this is plus 2. So what should be here? This. That means यहाँ पे फिर से प्लस 2 होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए प्लस 5. n है O P Q R, तो यहाँ पे होना चाहिए S. और ओके okay, there is a little mistake, I'm sorry. There is actually, this is the number of letters, not plus 1. This is number of letters. If I take as plus, then that will be plus 2 plus 1 like that. Okay, then also उसमें भी आप कर सकते थे, नो इशू. ठीक है, अगर उसमें भी मैं बता देता हूँ, उसमें भी तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 होगा, तो Q P R S then it will be T. ओके, सो Q T W, दिस इज आंसर. ओके, जैसे मैंने पहले कर रहा था, वहाँ पे आप क्या करते, डी से एफ जाने के लिए आपको प्लस 2 करना पड़ेगा. तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, सो यहाँ पे प्लस 2 के बाद प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 6 होना चाहिए, और प्लस 6 के हिसाब से. ओके, दैट वाज माई मिस्टेक कि यहाँ पे मैं प्लस बोल दे रहा था, बट प्लस नहीं होगा. यहाँ पे आपको दिस इज द नंबर ऑफ लेटर्स. ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग प्लस देन दैट विल बी प्लस 2, बिकॉज ए बी एंड सी, ए से बी हम लोग जाएंगे तो प्लस 1 होता है, बट ए से सी हम लोग जाएंगे तो प्लस 2 होता है. बट अगेन अगर ए से सी हम लोग जाएंगे तो देयर इज 1 लेटर इन बिटवीन. क्लियर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन 1, नो इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रिपलेट्स. ओके, दिस इज वेरी इजी. 4 into 9 equal to 36, root over 36 equal to 6. Similarly 9 into 16, that is 144, root over 144 equal to 12. That is option 1. कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. Question number 7. There are 6 circles of different sides. You have to make the circles. Okay. Circle A intersects circle B, which is fully contained in the circle C. Let's see. इसमें आप लोगों को एक एक करके पढ़ते जाओ और बनाते जाओ. Circle A, okay. Circle A intersects circle B. Circle A intersects circle B, which is मतलब कि circle B fully contained in the circle C. Fully contained in the circle C. Okay, circle D intersects both A and C. Circle D intersects both A and C. Okay, but not B. B को intersect नहीं किया है. Circle E, which is fully contained in circle F. Circle E, which is fully contained in circle F intersects D. मतलब कि circle E intersects D. Circle E intersects D, but circle E is fully contained by circle F. This is a way of reading the question and making the Venn diagram. Which of the following statement is definitely correct? Let's see. Some E are A. No. Possibility होता तो हम देख सकते थे. All A are C's. No. Some F's are C's. Some F's are C's. No. Some D's. This is D. Are both A and C. Yes. So option 4. Okay. Next question. Question number 8. 7 years from now, Ankush will be old as Sumit was 5 years ago. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अंकुश को मैं ANK लिख रहा हूँ. अंकुश प्लस 7 विल बी, सुमित वॉज 5 years ago, S minus 5. ये एक हो गया. 6 years from now, अभी से 6 साल बाद, आरुषि विल बी एज ओल्ड एज अंकुश इज नाउ. तो आरुषि के लिए आरु लिख रहा हूँ मैं, ARU प्लस 6 इक्वल टू अंकुश. ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अंकुश प्लस 12 इक्वल टू S. मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, ओके. अंकुश प्लस 12 इक्वल टू S. ठीक है, ओके. और अंकुश इक्वल टू आरु प्लस 6 तो है ही. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है. एक मिनट. अच्छा, तो यहाँ से आरु को ट्रांसफ़र कर दो अंकुश के टर्म में. आरु सी इक्वल टू अंकुश माइनस 6. ठीक है, आरु सी इक्वल टू, तो हम लोग ने सारे को अंकुश के टर्म में ट्रांसफ़र कर लिया. आप किसी के टर्म में भी कर सकते हो, सुमित के टर्म में भी कर सकते हो, आरु सी के टर्म में भी कर सकते हो, किसी के टर्म में कर सकते हो आप. अभी यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 9 years लेटर द एवरेज ऑफ अंकुश, सुमित एंड आरुषि, मतलब कि अंकुश, सुमित एंड आरुषि का एवरेज
मतलब कि डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंकुश प्लस सुमित प्लस आरुषि इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा 30, तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 90, ठीक है। बट ये एक्चुअली में क्या है, अंकुश सुमित और आरुषि का अभी का एज नहीं है, ये इनको +9 और +9 भी करना है क्योंकि 9 ईयर्स लेटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 27 प्लस ये, ठीक है। तो ये अगर रह जाएगा अंकुश प्लस सुमित प्लस आरुषि इक्वल टू 90 माइनस 27 इक्वल टू 63 हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अंकुश के टर्म में। अंकुश तो अंकुश है, सुमित क्या है, अंकुश प्लस 12, आरुषि क्या है, अंकुश माइनस 6 इक्वल टू 63। तीनों को जोड़ के 63 आ रहा है प्रेजेंटेज। अंकुश प्लस अंकुश प्लस अंकुश प्लस 6 इक्वल टू 63। 3 अंकुश इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 63 माइनस 5 6। 3a इक्वल टू 57, 63 माइनस a इक्वल टू 19, मतलब कि अंकुश इक्वल टू 19। आरुषि का एज पूछा है, आरुषि का एज कितना है, आरुषि का एज कितना है, अंकुश माइनस 6, दैट मीन्स अंकुश माइनस 6 इक्वल टू 13, दैट इज ऑप्शन 3। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट। The two figures on the left are related in a certain way. The two figures on the right of this are related in the same way, but one of the figures is missing. We have to find the missing figure. Okay, this we have done in figure matrix. जिन्होंने क्लास किया उन लोगों को पता होगा, we have done this in figure matrix. Now let's see. So first of all, you have to see the outer this one. Okay, so this is what is happening. This is rotating first 90 degree and then a 45 degree like this, then a 45 degree. ओके, सिमिलरली इसको भी घुमाते हैं। ये ऐसा है, दिस फिगर 3 अगर, या फिगर सी से लेते हैं, इसको पहले 90 डिग्री घुमाते हैं, उसके बाद उसको 45 डिग्री घुमाते हैं। तो ऐसा होगा बाहर का। ऐसा किस में है, 1 में नहीं है, 4 में नहीं है, सॉरी 1 में है, 1 में नहीं है, 2 3 4 में है। ना लेट्स सी ये जो अंदर वाला है वो क्या हो जा रहा है, ये अंदर वाला ऐसा है, वो पहले ऐसा हो रहा है, ओके सॉरी ऐसा हो रहा है, उसके बाद वो थोड़ा सा 45 घूम रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको भी करो, रिवर्स में घुमाओ और उसके बाद ऐसा कर दो, ठीक है। इसमें से कौन सा में है, 2 में है, ऑप्शन 2 देखो, दिस और उसके बाहर दिस, दैट इज ऑप्शन 2, नो इशू। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी 1 5 15 43 125 33 68 1099, इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। लेट्स सी द डिफरेंस फर्स्ट। डिफरेंस इज 4, उसके बाद 10, उसके बाद 28, उसके बाद 82, उसके बाद 243। ओके फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी 4 इज व्हाट। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 1 plus 1। 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2 plus 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 3 plus 1। कैन आई राइट दिस 3 to the power 4 plus 1, दैट इज 81 plus 1, बट दिस इज एक्चुअली 3 to the power 5। तो ये होना चाहिए था 244 का गैप, 244 का गैप। तो अगर 244 का गैप होता तो ये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 243 ना होकर 244 का गैप होना चाहिए था, दैट इज ये 368 वाला जो टर्म है वो रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन 3, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट, द सिविक बॉडीज इन द सिटी should do more to protect greenery. Tree felling in the city has drastically increased over the year. Okay, the civic bodies in the city should do more to protect greenery. Tree felling in the city has drastically increased over the year. The civil bodies have taken some but not enough to steps. Okay, so we can assume this. Yes, okay, fine. That taken some step but not enough steps, because do more बोला है। तो with this particular ये we can assume that enough steps नहीं लिया है, enough steps नहीं लिया है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसको और ज़्यादा करना चाहिए। तो सेकेंड इज करेक्ट। लेट्स लुक एट द फर्स्ट। ट्री फेलिंग इन द सिटी हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। यस,
यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है सिविक बॉडीज़ को, तो वी कैन एज्यूम दैट ये जो मतलब कि जितना प्रोटेक्ट होना चाहिए था या फिर जितना होना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली घटा है, ट्री फेलिंग जो है वो बढ़ चुका है, दैट इज़ वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट इट नाउ। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, दिस इज इजी। ओके, सब कुछ दिया हुआ है तो आप बस इसको पढ़ो। हाउ मेनी स्क्रिप्ट राइटर्स आर डायरेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर बट नॉट एडिटर्स। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हाउ मेनी स्क्रिप्ट राइटर्स, तो दिस एरिया इज स्क्रिप्ट राइटर्स, okay, and are directors as well as producers, okay, but not editors, editors नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो कौन सा जगह बच गया 7, दैट इज ऑप्शन 4, सही है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज two rotated position of a cube are given below, which number will be at the bottom face if 1 is, this is very easy, घुमा दो 2 5 1 2 3 4, ऑपोजिट 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 जो बच जाएगा, तो 1 का ऑपोजिट है 4, 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, लेट्स सी। ऑल प्लांट्स आर trees, fine. All herbs are bushes, but we don't have any connection with plant, trees and herbs and bushes, so we will see the next. Some bushes are trees, some bushes are trees, all herbs are bushes, okay, all herbs are bushes, now it's okay. Some herbs are trees, no. Some trees are plants, yes. Some plants are bushes, no herb is tree, no. Again, this is correct, but some herbs are trees, no herb is tree. Herb tree, some no, both are individually wrong or cannot say. So we can tell that only 2, either 1 or 4 follow. That is option 3. Okay. Next, question number 15. Let's see. B, C, D, E, F. Next is U, V, W, X, Y. Okay, the first option is J, K, L, M, N and M, N, O, P, Q. ये हो गया। बाकी आप देख सकते हो D, E, F, G, H ये तो है, पर W के बाद नहीं है, X, Y नहीं है, तो ये नहीं हो गया, ये नहीं हुआ। C के बाद D, E, F, G ये तो हो गया, बट V के बाद W, X, लेकिन उसके बाद है नहीं, ठीक है, T आएगा नहीं कैसे भी। H, I, J, K, L तो आ गया, बट O, P, Q आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे S है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड वन आउट है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। मैं हमेशा बोला था कि इसमें प्राइम नंबर आपका प्रायोरिटी है, क्लास में बोला था मैंने बहुत बार, तो यहाँ पे आपका 225 जो 15 का स्क्वायर है दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ 33 पर्सन, ओके, फेसिंग नॉर्थ, फाइन, फेसिंग नॉर्थ, विराट इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, विराट इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, 9th फ्रॉम लेफ्ट, एंड स्मिता इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, स्मिता इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, ओके, तो यहीं पे 16 चला गया, बीच में 17 होंगे। देवेश इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ स्मिता एंड विराट, तो देवेश यहाँ पे है, बीच में मैंने बोला कि ऑलरेडी 33% है, तो यहाँ तक 9 और 7 16, बीच में 17, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 होगा, विच इज़ देवेश पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से क्या पोजीशन हो जाएगा, ये दिस इज 7 + 8 = 15, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 16 फ्रॉम राइट, तो ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ये हो जाएगा 24, ठीक है, यू कैन काउंट इट, ऐसे करके देख लेना, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऐसे ही हो रहा है, बाकी भी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24। जिन लोगों को 22 आ रहा है मेक इट श्योर कि आप सही से गिन रहे हैं, दिस विल बी 24 इज द आंसर। यू कैन अगेन ट्रायंगल लिख के आप कर सकते हो, लाइक ABH विल बी अ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे करके BFC ऐसे करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट
सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेयर, ओके, रिलेटेड इन द सेम वे। तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 7 इक्वल टू 88, फाइन। 15 स्क्वायर इक्वल टू 225, ये तो हो ही नहीं रहा है। 19 स्क्वायर 265 के आसपास नहीं होता है, और ज़्यादा होता है, तो ये नहीं हो रहा है। 5 स्क्वायर 30, 5 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 30, ये नहीं हो रहा है। 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 प्लस 7 इक्वल टू 176, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत इजी था। ओके, लेट्स सी दिस। ओके, देखो इसमें यू हैव टू सी द फिगर कि कैसे कैसे इसके साथ ये इसका क्या रिलेशन है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, और आपको डिस्टिंक्ट एक कुछ ढूंढना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि देखो यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ पे के है, यहाँ पे के यहाँ पे मूव हुआ, तो एस अगर यहाँ पे है तो एस यहाँ पे मूव होगा। एस यहाँ पे कितने में है, इसमें नहीं है, एक एलिमिनेट आपका ऐसे ही हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी के आपका यहाँ पे है, के यहाँ पे गया, एस यहाँ पे था, यहाँ पे गया, तो हैशटैग यहाँ पे आ जाएगा, हैशटैग यहाँ पे, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके ओके, देखो ओके, ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ पे आया, स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया इन दिस पोजीशन, तो इक्वल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल दोनों का यहाँ पे है। ओके ओके, और क्या चेंज हो रहा है देखो। ओके, ये इधर से जा रहा है, स्क्वायर उठ के, इक्वल उठ के, तो डॉलर ऊपर रहना चाहिए, डॉलर ऊपर इसमें भी है, ठीक है। नया कहाँ पे ऐड हो रहा है, लेट्स सी, नया कहाँ पे ऐड हो रहा है, नया कहाँ पे ऐड हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस, एम और एन, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। ओके ओके ओके, एक चीज़ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखो इन दिस पोजीशन, ये यहाँ पे घूम के आ रहा है, ये इधर जा रहा है, बट यहाँ पे जो ये जो सिंबल है ये चला जा रहा है, ये उठ जा रहा है, ये उठ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इक्वल आएगा तो इक्वल यहाँ पे रहा, लेकिन स्क्वायर उठ के एक कुछ नया आएगा, बट यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो ऑलरेडी हो चुका है, ट्रायंगल तो ऑलरेडी है, तो ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 3 हो सकता है, तो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 3 of the 4 figures of cubes are alike in a certain way and one is different. Find the odd one. Let's see. आपको यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि ऑपोजिट वाइज या फिर क्या किसके वाइज आ रहा है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे इसको जोड़ूँ, इसको ऐसे जोड़ूँ, इसके ऐसे जोड़ूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग को 2 फिगर में कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं पहले इसको और इसको देखता हूँ, ठीक है, 1 और 2 को देखता हूँ, तो 1 3 6 है, 1 3 6, अच्छा इसमें 3 इक्वल है, तो ऐसे करते हैं 3 6 1 और ये करते हैं 3 5 4, तो 6 का अपोजिट 5 है, इसका अपोजिट 4 है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक चीज़ देखो, इसको अगर मैं फिर से लिखूँ 3 2 5, तो ये प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि इसके साथ इसको हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि 3 5 4 है और 3 2 5 है, इसको ये जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये दो अगर देखते हैं 3 5 तो 2 का अपोजिट 4 है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 1 का अपोजिट 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी रखते हैं, क्या देखते हैं कि 2 के साथ 4 का रिलेशन जा रहा है, 2 के साथ 4 का रिलेशन जा रहा है। लेट्स सी, इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, यस बिल्कुल है, क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 राइट साइड भी घुमाते हैं, 4 3 5 इसको भी राइट साइड से घुमाते हैं, 4 2 6, देखो 6 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट जो रह जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे 3 का अपोजिट जो रह गया था 2, 3 का अपोजिट 2, तो यहाँ पे ये 1 2 और 3 एक ही डाइस का है, बट ऑप्शन 3 जो है वो डिफरेंट डाइस है, तो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, 5 गर्ल्स कविता, पिंकी, रीता, शीला एंड मोना आर मैरिड टू कपिल, प्रवीण, रेहान एंड शिवा एंड मानस, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ओके, नाउ इसको आपको करने का प्रोसेस क्या है कि पहले लिख लो कविता, पिंकी, रीता, शीला एंड मोना, ठीक है। ये भी मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं इन द क्लास। अब जो नहीं है उसको भी देखो, जो है उसको भी देखो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कविता का जो हस्बैंड है वो कबीर हो ही नहीं सकता है, कविता का हस्बैंड कबीर हो ही नहीं सकता। प्रवीण, रेहान, शिवा, मानस में से कोई एक होगा,
ठीक है। सिमिलरली इसका ये नहीं हो सकता है, इसका ये नहीं हो सकता है, इसका ये नहीं हो सकता है, इसका ये हो नहीं सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या बोला है कि क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है नो हस्बैंड्स नेम स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम, तो ये मैंने लिख दिया। रीता इज नॉट मैरिड टू प्रवीण और शिवा। रीता जो है प्रवीण से भी मैरिड नहीं है और शिवा से भी मैरिड नहीं है, तो इसके पास बच क्या गया, आर चला गया, पी चला गया, एस चला गया, बच गया के और एम, के और एम, ये दोनों बच गए। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। मानस इज नॉट मैरिड टू रीता और पिंकी। मानस रीता और पिंकी से मैरिड नहीं है, मतलब कि मानस पिंकी से भी मैरिड नहीं है और रीता से भी मैरिड नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिकली हो गया कबीर। तो इसका रीता का हो गया कबीर, क्योंकि रीता से मानस शादी नहीं करेगा, ठीक है। ओके, शीला इज नॉट द वाइफ ऑफ प्रवीण और रेहान। शीला इज नॉट द वाइफ ऑफ प्रवीण और रेहान, तो प्रवीण यहाँ से कट गया, ठीक है, और रेहान यहाँ से कट गया, तो इसके पास क्या बचा, एस पी आर चला गया, के चला गया, क्योंकि के ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, तो इसके पास बच गया एम, तो इसको एम होना पड़ेगा। ओके, कविता इज मैरिड टू शिवा। कविता इज मैरिड टू शिवा, तो यहाँ पे चला गया। ओके, नाउ हम लोग के पास और क्या है। ओके, ओके, बच कौन कौन गया है, शिवा चला गया, कबीर चला गया, मानस चला गया, प्रवीण बचा है और रेहान बचा है। अब देखो प्रवीण यहाँ पे हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसको किसके साथ करना पड़ेगा, रेहान के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा प्रवीण। देखो शॉर्ट है, पूछा कि हु इज द हस्बैंड ऑफ पिंकी, पिंकी का हस्बैंड कौन है, रेहान, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स फॉलो अ पैटर्न। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये, दिस वाज ओके, फिर भी इजी था। कैसे, 9 + 6 = 15 and 15 - 8 = 7, 15 × 7 = 105. Similarly, 8 + 5 = 13, 18 - 6 = 12, 13 × 12 = 156. Similarly, 11 + 7 = 18, 12 - 9 = 3. This will be 54. That is option 4. Next. Okay. Beer is equal to DEHU, CHEST, chest equal to this. Normal will be written as. ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। लेट्स सी, BEAR, इसको हम लोग अगर करते हैं B + 3 क्या होगा, PCD, अच्छा ऐसे लिखते हैं, BEAR, B को CD के बाद E आएगा, E को FG के बाद H आएगा, A को BC के बाद D आएगा, R को ST के बाद E आएगा। अब इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, लेट्स सी। पहले सबसे पहले लेटर कौन सा था, A, उसके बाद B, उसके बाद E, उसके बाद R, ABER। हम लोग अगर अल्फ़ाबेट वाइज सजाएंगे, तो रैंक वाइज सजाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A क्या है पहले, DEHU आ गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा CHEST, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, ये भी +3 करके वही आएगा, लेकिन हम लोग को ये सजेगा कैसे, CEHST, ठीक है। देख लो, C के +3 F है, E का +3 H है, H का +3 K है, IJ, S का +3 U है, और T का +3 सॉरी, S का +3 TU भी है, और T का +3 W है। सिमिलरली हम लोग करेंगे नॉर्मल। ओके, पहले +3 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, QOP NOPQR RSTU MNOPABCDLMNO, ये हो गया। अब इसको सजाते हैं अल्फ़ाबेट वाइज, क्या होगा, A, ओके, उसके बाद ओके L, उसके बाद MNOPQR, ALMNOR, A क्या हो जाएगा, D, DO, D से क्या स्टार्ट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हो जाएगा DOPQRU, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The two words given below are related in a certain way. Which of the option contain two words that are related in the same way? सर्कल से स्पेयर बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल, सर्कल का ही अगर हम लोग सर्कल को कैसे समझाऊँ, ये सर्कल है, ठीक है। लुक एट 2D सर्कल फ्रॉम अबव, ठीक है, मतलब कि इस ऊपर से देखो, इसको अगर हम लोग घुमा देंगे तो ये बनेगा, या फिर सर्कल का 3D फॉर्म एक टाइप से स्फीयर होता है, रेक्टेंगल का नहीं बनेगा रोम्बस। कोन को भी आप लोग अगर बनाने की कोशिश करोगे, कोन
तो ये ट्रायंगल बनेगा या फिर उस ट्रायंगल का जो 3D फॉर्म होगा वो बनेगा। ट्रायंगल का प्रिज्म नहीं बन सकते, प्रिज्म नहीं बन सकता है, ठीक है, नहीं बन सकते प्रिज्म, बट स्क्वायर का क्यूब बन सकता है। स्क्वायर से स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर को आप अगर कंबाइन करोगे तो क्यूब बनेगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। 2D 3D फॉर्म का आंसर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिस इज अ बिट थोड़ा सा ये था, बट लेट्स सी, कर सकते हैं हम लोग। इन सर्टेन कोड डॉलर मीन्स लेसर देन, डॉलर मीन्स लेसर देन। हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सिम्बॉल्स, ओके। डॉलर मीन्स लेसर देन, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन, ठीक है, क्लियर है, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन। स्टार मीन्स नॉट लेसर देन, नॉट लेसर देन का मतलब क्या है, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। हैशटैग मीन्स ग्रेटर देन, हैशटैग मीन्स ग्रेटर देन। परसेंटेज मीन्स नीदर ग्रेटर नॉर लेसर, नीदर ग्रेटर नॉट लेसर मतलब कि परसेंटेज का मतलब है सीधा सीधा इक्वल। नाउ लेट्स सी, 3B डॉलर मतलब कि लेस देन 4A, ये है। 5C स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11A। क्या अब हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वी कैन डू, ओके 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 ओके, इसको हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अच्छा, हम लोग को B के साथ C का रिलेशन मांगा है ना मेनली, BC 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 BC, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वेट 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 वेट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि 11A यहाँ पे है और यहाँ पे भी A है, तो इसको हम लोग 11 कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग होल को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10B लेस देन 11A। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 10B लेस देन 11A, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे है 5C ग्रेटर और इक्वल टू 11A। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं 10B लेस देन और 11A लेस देन और इक्वल टू 5C, या फिर आप जैसे ही करो 5C ग्रेटर देन और इक्वल टू 11A, ओके, अगेन दिस इज ग्रेटर देन 10B, ठीक है। अब जैसे भी लिख कर, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में C के साथ 10B का क्या रिलेशन होगा, 5C के साथ B का क्या रिलेशन होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 5C ग्रेटर देन 10B लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि इक्वल तो 11A के साथ है, बट 11A कहीं ना कहीं अगर 10B से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये अगेन, 5C इज ग्रेटर देन 10B। नाउ एक चीज़ देखो, जो C को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आप ये 10B के से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि 25 ग्रेटर देन 20, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि 25 ग्रेटर देन 20, तो 25 के लिए 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो C का वैल्यू हो गया 5। वहीं पे B का वैल्यू कितना हो रहा है, 10 इंटू 2, ठीक है। इसका मतलब यह है कि C को 5 से मल्टीपल करने से ही अगर B को 10 से मल्टीपल करने से बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स C इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पे C इज ग्रेटर देन B होगा, C इज ग्रेटर देन B। ये कौन सा में है, C एट द रेट B, दैट इज C इज ग्रेटर देन B, ओके। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लेट्स सी। रोहन टोल्ड इशिता योर पैटर्नल ग्रैंडफादर्स डॉटर इज अ मदर ऑफ माई सॉन्स डॉटर। रोहन का सॉन का डॉटर है, ओके। नाउ मदर ऑफ माई सॉन्स डॉटर, मदर ऑफ माई सॉन्स डॉटर विल बी माई सॉन्स वाइफ, ओके। मदर ऑफ माई सॉन्स डॉटर तक हो गया, ओके। नाउ दैट मदर, okay, is someone's daughter. Whose daughter? Whose daughter? Which is paternal grandfather of whom? Ishita's. Ishita's paternal grandfather. See, this is father, this is father's father, that is paternal grandfather. Ishita's paternal grandfather's daughter is Rohan's son's daughter's mother. Fine. Rohan's son's daughter mother is this, and Ishita's paternal grandfather's daughter is also this.
Now let's see how is Ishita's father, that means this, for example this is X, how is Ishita's father related to Rohan's granddaughter? Rohan's granddaughter is this. Okay, now we can see that this is mom, this is mother, and mother's brother, that is maternal uncle, that is option 2. Okay, question number 28, this is very easy. 4:40 PM, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, एग्जैक्टली 4:40 PM का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है. लेट्स सी फार्मूला क्या है, 38 माइनस 11/2 इक्वल टू द एंगल, ये आपका हमेशा मॉड के अंदर होता है, मॉडल के अंदर होता है. 30 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 11 इंटू 40/2, ये कितना हो जाएगा 20, 120 माइनस 220 दैट इज़ 100 डिग्री. मैंने बोला पहले ही कि मॉड के अंदर रहता है तो 100 डिग्री हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 29, 8% designated alphabetically from A to H are sitting around a circular table. Fine, circular table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A is facing F, अब कहीं से भी बैठा हो, A is facing F, सर्कुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. A is facing F, F who is immediate to the left of B, F who is immediate to the left of B, B यहाँ पे बैठेगा तभी जाके immediate left होगा. Okay, now C is facing G, G who is immediate to the right of D, G who is immediate to the right of D. Okay, C is facing G who is immediate to the right of G. तो C हो कहाँ से सकता है, यहाँ पे हो नहीं सकता है. C यहाँ पे हो सकता है. C is facing G who is immediate to the right of D, ऐसे हो सकता है, isn't it? ओके, ठीक है. हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी. ई एंड एच आर नेबर्स, ई एंड एच आर नेबर्स, बट ई इज नॉट फेसिंग बी. ई एंड एच आर नेबर्स, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. ई इज नॉट फेसिंग, बच कौन गया, कौन बच गया, ए बी सी डी बच गया, इमीडिएट राइट ऑफ डी. ठीक है, पूछा क्या, व्हाट आर द 2% सिटिंग बिटवीन बी एंड ई. बी और ई के बीच में 2% क्या है, सी एंड एफ, ऑप्शन 1. लास्ट क्वेश्चन, अ फादर टोल्ड हिज सन आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वॉज एज यंग एज यू आर नाउ. मतलब कि जब मैं तुम्हारे साल का था तो तुम जितने थे उससे दुगना मैं था. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 85. तो मैं लिख सकता हूँ कि सन इज एक्स एंड फादर इज 85 माइनस एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, ये पूछा गया आपसे. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 85 माइनस एक्स जो कि फादर के एज है, ठीक है, अभी जितना हो उतने साल पहले, ठीक है, जब मैं उतना साल का था, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वॉज एज यंग एज यू आर नाउ. मतलब कि मैं अभी तुम जितना हो, जितना उस टाइम में मैं जितना था, तो मतलब कि 85 माइनस एक्स, ठीक है, एज यंग एज यू आर नाउ. ओके, उस टाइम में कितना था वो, एक्स अभी जितना है डिवाइडेड बाई 2. ओके, इसको सॉल्व करो. 85 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2. ओके, 85 माइनस 2x इक्वल टू एक्स. 170 माइनस 4x इक्वल टू एक्स. 170 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 35. तो x अगर 35 है, सॉरी 34, सॉरी, x इक्वल टू 34. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, फादर इक्वल टू 85 माइनस 34, दैट इज 51, दैट इज ऑप्शन 3. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एज प्रॉब्लम, बट एज प्रॉब्लम में ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था. एज प्रॉब्लम हालांकि हम लोगों ने करवाया है, एज प्रॉब्लम मैंने 2-3 बार करवाया है इन द क्लास. तो दिस वॉज द क्वेश्चन, काफ़ी सारे एज प्रॉब्लम की क्वेश्चन. वी हैव डन सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, वी हैव डन क्लॉक डेफिनेटली, वी हैव डन ब्लड रिलेशन डेफिनेटली. ब्लड रिलेशन का जो ऐसा क्वेश्चन था जिसको इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन कहते हैं, इसको भी हम लोग किए थे. इनइक्वलिटी जो कि रीजनिंग के सिलेबस में या फिर RIC के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है. इनइक्वलिटी पे मैंने ऐसे चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है. ऑड वन आउट तो बहुत करेक्ट किया है हम लोग ने. लेटर सीरीज़ करवाया है, लेटर सीरीज़ का ऐसे भी करवाया है जो अल्फ़ाबेटिकली सजा के बाद आप लोग कर पाएंगे, ठीक है. मिसिंग नंबर बहुत करवाया है. यस, दिस इज अगेन काइंड ऑफ पैसेज
इन द सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर पैसेज क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, डाइस करवाया है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था, 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे दिस क्वेश्चन वाज अ बिट आप लोग को ट्रिकी लग सकता है। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन दिस वाज ये था, क्यूब का पैटर्न है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी इजी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वेशन वाला था, तो जिन लोग का मैथ नहीं था वो लोग थोड़ा सा फंस सकता है। बाकी दिस वाज गुड क्वेश्चन। आप लोग मिनिमम यहाँ पे 20 अटैम्प्ट तो बनता है, 20 सही तो बनता है, 20 अटैम्प्ट क्या बोल रहा हूँ, 20 सही तो आपका बनता है मिनिमम। आप एटमोस्ट 26 to 27 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था आप उसको छोड़ते भी, बाकी 24 to 25 क्वेश्चन वर वेरी मॉडरेट, मतलब कि डूएबल था। ओके, थैंक यू। इफ़ यू न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।